علیکم ناظرین، میں ہوں نادیہ صدیقی اور آپ سب کو ہماری طرف سے ان کی وائس آف نیشن کی طرف سے عید مبارک. کیونکہ عید ہے اور عید کی خوشیاں منا رہے ہیں تو اور عید قرباں ہیں. تو ناظرین، جب ہم بات کرتے ہیں جذبوں کی، اظہار کی، قربانی کی، تو ہمارے ملک کا ایک ہیرو، ایک ایسا شہزادہ، ایک ایسا نام چودھری اسلم جو ہیں، ان کو ہم بھول نہیں سکتے. کی شہادت کو اب سے 8 سال تو گزر چکے ہیں، لیکن وہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ تا قیامت رہیں گے. تو آج ہم ان کے گھر موجود ہیں. ان کی اہلیہ نورین جو مسز نورین چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے ساتھ ہم آج عید بھی منا رہے ہیں. ان سے ہم کریں گے ان کی زندگی کے بارے میں باتیں کہ وہ کس طرح سے عید گزارتی تھیں، کیا کیا ہوتا تھا، کیسے ان کی جو زندگی تھی وہ گزری. تو میرے ساتھ رہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ اللہ کا کرم. سب سے پہلے تو آپ کو عید بہت زیادہ مبارک ہو. آپ لوگوں کو، تمام ٹیم کو بھی عید مبارک ہو. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ چودھری صاحب کی شہادت کو 8 سال تو گزر گئے ہیں، تو کیا اب تک پولیس نے کوئی قاتلوں کو پکڑا یا کیا پیش رفت ہوئی، کیا ہے اب تک؟ دیکھیں، جو چودھری اسلم معاملہ ہے وہ بڑا ہائی پروفائل ہے، تو وہ اتنے ایزی تو کبھی بھی ایسے ہائی پروفائل کیسز کلیئر نہیں ہو سکتے. باقی چودھری کے جو دشمن ہیں وہ تو ہر جگہ موجود ہیں. انہوں نے کام کوئی چھوڑا ہی نہیں. کسی جو ملا، جو ٹاسک دیا انہوں نے نبھا کر دکھایا ہے سندھ پولیس کے اندر. تو دشمنی کا اندازہ بھی بے تحاشا ہے، کروڑوں میں ہے، شاید میں نہیں لگا سکوں گی. تو بہرحال امید یہ تھی، لازمی ہے. دیکھیں، ایک فیملی ہوتی ہے، جانے والا جو میرے رب کا ٹائم مقرر ہے وہ مقرر ہے، مگر جو پیچھے رہتے ڈپارٹمنٹ کا رول ہوتا ہے نا. ہیرو تو ڈپارٹمنٹ سے آیا بن کر، تو ڈپارٹمنٹ کا کام تھا اپنے ہیرو کا کیس پورا دیکھتے، کلیئر ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہوتی. مجھے تو ایسا نہیں لگا، کیونکہ اس کیس کو ایک رخ پہ اس لیے بھی سائڈ لگایا کہ میرے پاس میڈیا ساری چیزیں میرے ساتھ چلتی ہے. تو جی ہو گیا، فائنلائز ہو گیا، یہ ہو گیا، اتنے بندے ہو گئے، وہ ہو گئے. بس یہ سننے میں نے بھی وہ بھی سما پہ اور ٹی ویوں پہ ہی سنا ہے. میرے ساتھ کسی کا رابطہ نہیں ہوا اس معاملے میں. وہ جیسے فیملی نہیں ہوتی، وہ ستیلی فیملی والا کردار ہے یہاں. تو میں آج 8 سال کمپلیٹ کر چکی چودھری کی برسیوں کے، کرداروں کے، میڈیا کے ساتھ. بلکہ میں تمام الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، پریس میڈیا کا شکریہ ادا کرتی ہوں. ہمیشہ کرتی رہوں گی جب تک میری جان ہے، کہ انہوں نے چودھری کے کو ہیرو مانا، ہیرو بنایا اور ہیرو کے ساتھ چلتے رہے، اس کو یادگار میرے ساتھ بناتے رہے. انہوں نے اپنا فرض ادا کیا ہے میرے ساتھ. اچھا بھابھی، کیا آپ یہ سمجھتی کہ جن قاتلوں کو سامنے لایا گیا تھا کہ وہی قاتل تھے یا ان کے پیچھے حقائق کچھ اور؟ چودھری کا ایک قاتل نہیں ہے. چودھری کے لیے پوری پلی برانڈ ہے، اور چودھری کو ایک بندہ گرا نہیں سکتا. چودھری کے سامنے کھڑے ہونے کی تاب نہیں ہے ادھر کسی کے اندر. دہشت گردوں کی بات کر رہی ہیں، نارمل بندوں کی نہیں. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ چودھری پہ 11 اٹیک ہوئے لائف کے اندر، بس آخری وہ بولا کاریگر ثابت ہو گیا، زندگی نہیں تھی. ورنہ مجھے چودھری اسلم پہ زندگی بھر رہتی زندگی میں بڑا فخر رہے گا کہ میرے رب نے مجھے اتنا بڑا شیر اور غیرت مند مرد دیا. یہ میرا غرور ہے. اچھا بھابھی، یہ بتائیں کہ ظاہر ہے آپ کا ماشاءاللہ آپ کی زندگی کے 20 سال خوبصورت لمحے ان کے ساتھ گزرے. تو جب دہشت گردوں کی طرف سے، جب دشمن عناصر کی طرف سے ان کو تھریٹس ملتے تھے، تو کیا کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ کو وہ بہت پریشان نظر آئے ہوئے ہوں، گھبرائے ہوئے نظر آئے ہوں، اس طرح کا کچھ ہوتا تھا؟ میں نے ان کو ایک بار پریشان دیکھا تھا جب ان کی پروموشن ہٹا دی گئی تھی، ڈی ایس پی بنایا گیا دوبارہ. ایک بار چپ بیٹھے تھے، تو میں نے کہا اسلم تمہارے ساتھ خدا ہے، 4-5 مہینے میں تم نہ. بولا بات سنو. میں نے کہا کام چھوڑ دو نا، تمام رینکر کا آفیسر کام چھوڑ دے اس کراچی میں، بتا دے کہ کام کرتا کون ہے. بولا بات سنو نورین، میں سپاہی بن کر بھی کام کروں گا، میں مجاہد ہوں. جی دیکھو، ایک بندے کو، ایک نہیں، تمام جتنے رینکر آفیسر تھے جن کو پروموشن سے ہٹایا گیا، جنہوں نے کام کیا اپنی جانا، اور بھی پولیس والے ہیں جنہوں نے نظر اپنے آپ کو پیش کیا اس ملک کے لیے. ٹھیک ہے، ان کی زندگی تھی، وہ سیف رہے، اللہ ان کو سدا سلامت سیف رکھے. مگر ایک بندہ آج چودھری اسلم کی ورکنگ دلیری پورے پاکستان کے اندر میرا چیلنج ہے. مرد، ایک سنگل مرد، ایک پولیس والا کوئی ہے تو میں ضرور جاتی، چاہے مجھے کتنا بھی سفر کرنا پڑتا، کہ واقعی آپ ایک مرد. سلام ہے آپ کو. اس وجہ سے
इन तमाम रैंकरों के साथ थोड़ी नाइंसाफी हुई है और आज भी है कहीं। अगर ये हमारी फोर्सेस है तो इनको आपस में इतना अंदर एहतियात होना चाहिए कि कबाइल की चीजें अंदर इंटर ना हो सके। बिल्कुल। मुल्क को साफ रखना है, शहर को, सिटी को करना है। तो चौधरी ने ये चीजें नहीं देखी। चौधरी उस वक्त भी जोश में खड़ा हो गया, नहीं नहीं नहीं, मैं सिपाही हूँ, मैं सिपाही बनकर भी वही काम करूंगा, जो होता हो। मैंने कहा ये जाओ, आज नौरीन कहती है 4-5 महीने तुम्हारी तकलीफ के हैं। फिर वो वापस अपनी सीट पे बहाल हुए थे। अच्छा भाभी ये बताएं कि ज़ाहिर उनकी शहादत को इतने साल गुजर गए, पुलिस की जानिब से आप लोगों को क्या सिक्योरिटी फराहम की गई और आप क्या समझते हैं कि आप लोग सिक्योर हैं? आपको मतलब सिक्योरिटी कोई मिल रही है? बात सुने, मेरा थ्रेट्स अभी भी मिल रहे हैं? थ्रेट्स तो हैं। बात सुनो, चौधरी असलम ने, मेरे ख्याल में आपने चौधरी के कारनामों को देखा ही नहीं है पूरी तरह। फिर उसकी फैमिली कहाँ खड़ी है? ये सीने में सिर्फ मेरा एक दिल है जो मैं पाकिस्तान बैठी हूँ। बाकियों की जाके देखिए, मिसेज ने पाकिस्तान में नहीं रहती, जिन्होंने थोड़े बहुत काम किए। मेरे लिए चौधरी हराम कमा कर नहीं गया ना कि मैं अपने बच्चे अमेरिका में पालूं भीख मांग कर, जो गैर मुल्कियों से, ये नहीं हो सकता। मैं अपने ही देश में खड़ी हूँ इज्जत के साथ। मौत जिंदगी खुदा के हाथ में है, जो दिन मुकर्रर है लिखा है। बाकी सिंध पुलिस का काम जो है वो उन्होंने हमारी सिक्योरिटी दी है, वो भी मैंने पास कराई है। मेरे साथ मसला कर दिया था इन्होंने। मेरा साल बच्चों का एक ज़ाया हुआ, 2 साल कोरोना के निकाल दो, 1 साल शहादत का गया, ब्लास्ट जब मेरे घर पे हुआ 1 साल में घबराई। मैं माँ भी थी, मैं बड़ी डरपोक माँ थी, जो बात सच है। पता नहीं चौधरी के जाने के बाद मुझे क्या हुआ, 5 मिनट में हुआ जो वो मेरे खुदा की ताकत थी कि एक औरत से काम चौधरी के किरदार को उठाना था मेरे रब ने। वो बीवी बनकर आई फिर मैं। अच्छा चौधरी साहब को अगर हम देखें तो उनकी ज़िंदगी का जायज़ा लें, जो उनके कारनामे हैं वो देखें, ठीक है। लेकिन चौधरी साहब जो थे, एक उनका जो रोब और दबदबा था दहशत गर्दों पे, वो अलग था ना। वो मतलब खौफ फेंक तारी होता था। तो घर में मतलब उनका रवैया मुख्तलिफ था या घर में भी वही रौब होता था कि दुनिया के इंटरव्यूज में ये कहा कि मैं कहूँ कि मेरा चौधरी अल्लाह का वली होता अगर सिंध पुलिस में ये ना होता। सुभान अल्लाह। इतनी प्यारी आदतें कि मेरे ख़ानदान में क्या, मुझे पाकिस्तान में कोई ऐसा मर्द ही नहीं नज़र आया। अदा मैं कहूँगी, एनकाउंटर की बात नहीं कर रही हूँ, जो घर के अंदर है, जो घर के अंदर एक इतना सादगी कि कोई चीज़ अगर उसको रात भूख भी लगी होगी, अगर आधी रात जैसे घर आया 4:30-5, सिर्फ मैं बैठती थी कि मुझे पता उसको आदत नहीं है बोलने की, किसी को नहीं, अपने वर्कर को भी नहीं जगाएगा, कुक को। अच्छा मतलब सेल्फ खुद से करना। हाँ, बोला गुनाह। आप क्या कर रही हैं? मैंने कहा कुछ नहीं। जब यूं मुंह मोड़ा मैं समझ गई इसको भूख लगी है। मैं भागती हुई नीचे आई, बोला कुछ नहीं करना, मुझे लस्सी और सूखी रोटी दे दो। वो एसपी है ये, वो जो दुनिया जिससे घबराती है, जो दहशत के लिए, दहशत गर्दों के लिए दहशत की अलामत है। क्योंकि जो मट्टी को नुकसान देगा चौधरी उनके आगे है, जो माओं की गोदे उजाड़ेंगे तो चौधरी वहां मिलता था। ये जब ब्लास्ट टाउन बनी, अब्बास टाउन का वाकया, डबल ब्लास्ट हुआ, याद है वो आपको? उस दिन चौधरी आंखें नम थी बहुत कमरे में। अच्छा वो आपको फील हुआ कि नहीं? मुझे, मैं तो मिसेज हूँ, मैं तो एक करवट, पाँव से नाखून तक, बाल तक समझती हूँ मर्द की सोच क्या है। इस वक्त उसका दिमाग में बात आया, मैंने इससे कह दिया पूरे पाकिस्तान का ठेका आपके पास है मिस्टर चौधरी साहब, मैंने नहीं रहना आपके साथ। जितने तो आप पागल होगी, बैठो इधर, टीवी ऑन कर दिए क्यू चैनल, और खुद सब आयतें पढ़नी शुरू करती शहीदों के ऊपर, और मतलब जो मुजाहिद होते हैं जी उनके ट्रांसलेट करने लगा। बोला आप जवाब दें, खुदा के आगे कौन औरत बोलेगी भाई? जहाँ पे अल्लाह का नाम आएगा वो अल्लाह के हवाले कर देगी अपने चौधरी को। क्या मेरे रब तू रखवाला है मेरे चौधरी का। मेरे पास चौधरी के अलावा कोई दुनिया के एहसासा नहीं है। मीन्स के रिश्तों में मैंने आखिर और अव्वल इसी को माना है, और जो मैंने कुर्बानियाँ दी है ना, वो उस मूवी के अंदर 1 सेकंड भी नहीं है। बहरहाल एक जानदार वाइफ का रोल है, पर बोला कहाँ ना पहुँचे हम तुम्हारी साथ में। अच्छा भाभी ये बताएं कि आप लोग ज़ाहिर है जब रिश्ते में बंधे, शादी हुई, तो प्रपोजल उनकी तरफ से था या आपकी लव मैरिज थी? नहीं, मेरी कोई लव नहीं थी, मुझे नफरत थी, मैं सच बताऊं। अच्छा, पुलिस डिपार्टमेंट किससे नफरत थी? पुलिस से। आज मुझे प्यार भी है, okay. ये मैं नहीं कहूँगी क्योंकि मेरा चौधरी पुलिस से था इसलिए और एक डॉक्टर से। ओके। कि मैं अपनी माँ से कहा, क्या रीज़न, क्यों नफरत थी? घर को टाइम नहीं देते, वो मेरी जिंदगी में टाइम ही नहीं आया।
लेकिन फिर भी आपने इतने खूबसूरत लम्हात इनके सामने गुजारे। 1.5 साल गुजारा, बामुश्किल 1.5 साल, 20 साल के अंदर। इतना ही टाइम मेरे हिस्से में आया, इससे ज्यादा नहीं आया सारा दिन। आज 1.5 साल आपने 150 सदियों के बराबर। हाँ, मेरे लिए एक एक पल 5-5 मिनट बड़े कीमती हैं कि वो ड्रेस पहनते उनको जानना है, मैं भागती हूँ। अच्छा, फिर कैसे रिश्ता आया, मतलब क्या था? रिश्ता ये नहीं आया, चाल चली गई। किसने चली चाल? मेरी बहन है एक बड़ी, उन्होंने, और मेरी वालदा मोहतरमा है जो अभी भी कुछ दिन पहले चौधरी साहब आपके मामू के बेटे, मामू के बेटे हैं। तो मुझे नहीं पसंद थे क्योंकि बड़ा मुश्किल केस था चौधरी को संभालना। ओके। वो बोला चमकते चांद को जमाना देखता है, हो चमकते चांद को बनाने तक एक औरत अपनी जवानी देख बैठती है। बिल्कुल। संभालते संभालते कहना बड़ा आसान होता है। बिल्कुल। तो मेरी माँ उस दिन भी किसी से कह रही थी मेरी से गलती हुई, मैंने अपनी बेटी पे जादू कराया था। 6-7 महीने इस केस में लगे। तो एक पल मेरी माँ रो गई, दुपट्टा उतार दिया सर से, मेरे कदमों में डाल दिया। अच्छा। चौधरी ऐसे ही दरवाजे पे खड़ा था। बोला मान, बोला ऐसे भी इसने बेवा होना। उसका वही होना। बोला ये किसी से भी करेगी, मैं इसको बेवा करूंगा, इसको मैं बसने नहीं दूंगा, इसने मेरे साथ किया इसने। मैंने कहा बात ये कि दिल मानता नहीं तो जबरदस्ती थोड़ी होती किसी से। मैंने मुंह पे कह दिया चौधरी आप मेरे भाई हैं। फिर क्या उस वक्त रिश्ता नहीं था। बोला हाँ मामू का बेटा भाई ही होता है, मगर जब एक निकाह 3 लफ्ज होते हैं उस वक्त वो आपका भाई नहीं होता। मैंने कहा अभी तो नहीं हुआ। खैर करते करते मेरी अपनी माँ की आंखों में जब आंसू, उसने कहा कुर्बानी शहीद। मैंने कहा मेरी जवानी जलेगी, जल गई। और मैंने कहा आपके आंसुओं की कसम है मैंने दी, मैंने कर दिया आपको। ये बात आज भी मेरा खानदान जानता है, गवाह। फिर उस हालात में, मैंने जिस हालात में चौधरी को उठाया, कुछ दुनिया आज भी मौजूद है पुरानी, बहरहाल शायद मेरा नसीब था। फिर मेरे रब ने जो तकदीर लिखी वो आज ज़माने के सामने, बड़ा फ़ख्र है मुझे इस तकदीर पे। अच्छा, जब आपकी शादी हो गई, ज़ाहिर है इस ड्रामेटिक रिश्ते के बाद शादी हो गई, पहला गिफ्ट याद है कि चौधरी साहब ने आपको क्या ला के दिया? बोला आपका बस ऐसा ही लफ्ज़ अदा किया कि मेरे को बारात वाले दिन बोला देखा हुआ है आपको। कोई कुछ भी नहीं दिया। कुछ नहीं दिया? ये तो जाती है, कुछ तो दिया होगा। नहीं, जो चौधरी आपको लगता है, मेरी नज़र में वो पागल लल्लू साजरी था उस वक्त। और मैंने कहा चौधरी आपको तरीकों का भी नहीं पता, बड़ों ने सिखाया भी नहीं है कि जब आप कमरे में आते हो, बीवी है तैयार, बोला पुरानी देखी हुई आप। अच्छा, नहीं ये नहीं होता था कि कभी फरमाइश हो कि भाई कभी 5 मिनट के लिए जो आ रहे हैं घर में, तो ये नहीं होता था कि आज नौरीन तुमने जो है ना साड़ी पहनी, आज तुमने ये शलवार, कभी दुपट्टा पहना? नहीं, मैं अक्सर जब शादी से आती मेरी आदत थी, मैं बहुत तैयार रहती। अब तो मैं बहुत सिंपल हो गई। अच्छा। साड़ी है ये, वो मुझे कहते हैं एक बात बताओ, मुझे रात पढ़ना पड़ता है आपको, और ऐसा कोई सीन नहीं है कि मैं बड़ी जाबर बन गई। मुझे बनाने वाला चौधरी है। अगर वो लाइफ के अंदर वो वर्डिंग यूज होंगी तो औरत बोलेगी ना। बिल्कुल। ईगो, मेरी ईगो पे भी जिंदगी गुजरी है, उसकी भी, मगर उसने आखिर में वो स्लिप हो ही गया। अच्छा, स्लिप आपने कर दिया ना, औरत स्लिप करती है। मैंने कहा क्या बच्चे माशाल्लाह, घर काम आपको पसंद आया, मैं कहानी करूँ यूं बदलती हूँ। मैंने कहा इन लफ्जों की कीमत नहीं है, जान देकर गुजर जाना वफा का नाम है। बस मैंने अपनी वफा से चौधरी को जीता है। अच्छा भाभी, ये तो हमने बात कर ली शादी की भी। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे वाक़यात हैं, कोई ऐसा वाक़या नहीं है जो मतलब हकीकतन एक खौफ में मतलब हो, कि खौफ में मुब्तला हो गए हो कभी? जब मेरे, हाँ बात सुने, 11 सितंबर को मेरे घर पे सुबह ब्लास्ट हुआ था 7:28 पे, 20 मिनट आपको मतलब टाइम भी याद है? हाँ, हर चीज याद है। जब हमारे पे गुजरेगी हम कहाँ भूलेंगे। बिल्कुल। तो 7 बजकर मुझे 18 अगस्त दयार इंटरनेशनल मदीना, ये मेरे कितने इंटरव्यूज में डेट भी आएगी, दोपहर 1 बजे के करीब का टाइम है। चौधरी के बच्चे इतने। मैंने कहा इन फार्मी अंडों को क्या समझाते हो, जो तुमने करना था सो कर दिया, अब जो हमारा नसीब होगा वो भुगतेंगे। उनको ये कहते तुम्हारे बाप की किसी गली में शाम हो जाएगी, ये दुनिया बड़ी मुश्किल है बेटा। बेटों को मैं कूद गई, मैंने कहा बस कर, इनको भी अल्लाह नसीब, अल्लाह ने लिखा, तुमने नहीं लिखा, ये जी लेंगे। तो मैंने कहा बात सुनो असलम, एक काम होगा। हम बोला मुंह संभाल कर बोलना। अब मैंने कहा मेरा घर उड़ जाएगा, हम बच जाएंगे, मेरे घर तबाह होगा, उड़ेगा, और मुझे नहीं मालूम। ये बात हो गई, इसने भी लाइटली ली। जब 11 सितंबर गैप देखो ना, अगस्त और सितंबर, 19-20 दिन या 1 महीना कर लो, इतना ही गैप बनता है, इससे ज्यादा नहीं है। तो
तीसरे दिन घर आता है ब्लास्ट के, मुझसे मिलता है किसी ठिकाने पे, आप जरा उधर आए, आप पे मुझे शक है। मुझे कहता है, मैंने कहा मैं सारा दिन तो तुम्हारे गार्डों के जुर्मन में रहती हूँ, घर में अकेली बाहर नहीं जा सकती मैं, कोई ना कोई 3 बंदे मेरे साथ ही होते हैं, तो वो पहले उनसे इंक्वायरी कर फिर मेरे पास आना। बोला नहीं, मैं तुम्हारी ज़बान से बड़ा तंग हूँ, तुम मेरे दुश्मनों से मिली भी लगती। मैंने कहा अच्छा मिली होती तो सरकार कब की जिंदगी से फारिग हो चुके होते। ऐसा नहीं है, ये मेरे रब को पता है कि मैंने तुम्हें खुदा से कैसे कैसे मांगा, इतनी कोई माँ भी नहीं मांगेगी। अब मेरा रोल पहले वाइफ का अभी तक प्ले होता रहा, अब मेरे बच्चों में बिल्ड होगा। एक माँ अपने लिए तो नहीं हुई, बिल्कुल, फिर वो दुआएं अपने बच्चों के साथ चलेगी कि अपने बाप के नाम को गिरने मत देना। अच्छा माशाल्लाह, कितने हैं आपके? मेरे 4 बच्चे। 4 बच्चे हैं आपके, कितने बेटे बेटियाँ? 3 बेटे 1 बेटी है मेरी। अच्छा माशाल्लाह, बेटी आपकी बड़ी है? बेटी बड़ी है, बस उसकी शादी की है इस रस्म व रवाज के मुताबिक। अच्छा है बेटियां अपने अपने घरों की जल्दी हो, हमें ज़िंदगी का भरोसा नहीं कर रुल जाए, फिर हमारा माशरा क्या है, फिर चौधरी की इज्जत, कोई बात ऐसी पे बर्दाश्त ना कर। तो नाज़रीन हम मौजूद थे बहादुर चौधरी साहब के घर में, और उनकी जो एक बहादुर अहलिया हैं जो कि इस कौम का भी फ़ख्र हैं, से हमने की बहुत सारी बातें, उनके साथ ईद भी मनाई, और उनके साथ ये जो है आप देख रहे हैं इस वक्त जो इन्होंने पूरा एक टेबल सजाई हुई है, यहाँ पे हमने इनके साथ बहुत सारी बातें की, इंजॉय की, उनकी ज़िंदगी के बारे में जाना। क्योंकि देखिए हर इंसान के पीछे एक आम इंसान छुपा होता है, और वो आम इंसान चौधरी नाम तो बहुत बड़ा छोड़ गए, लेकिन उसके पीछे एक बहुत सादा सा इंसान थे, और उनकी बीवी जो है आज उनके बाद एक बहुत बड़ा फ़ख्र है। तो ऐसे ही आप भी जो है कौम का फ़ख्र बने और कौम के लिए कुछ करें, क्योंकि ज़िंदगी जो है बहुत छोटी है, कल हो ना हो। मुझे दो इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।